Answer writing is a skill, and once you have mastered it, 100% score in CBSE board examination becomes a reality. Hello dear learners, I am your CBSE mentor Kanupriya Avasti. In today's session, we are going to learn how to frame the best possible answer to a 5-marker question. So without any further ado, let us begin with the question. Now this particular question has been taken from latest CBSE sample paper, right? What is the question? How do Indigo by Louis Fisher and The Roadside Stand by Robert Frost highlight the theme of exploitation, and what similarities do they reveal about the plight of marginalized communities? Now as a student, what I should do ideally is कि पहले मेरे को ये मार्क कर लेना है. क्या मार्क कर लेना है? कि इंडिगो चैप्टर को रेफर करना है हमने एंड द रोड साइड स्टैंड को रेफर करना है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट? एंड व्हाट आर द मेजर थीम्स दैट वी नीड टू हाईलाइट? व्हाट आर द मेजर थीम्स? Exploitation, right? And the plight of marginalized communities. So if you analyze the question properly, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमें दो चीजों पे फोकस करना है. वन इज एक्सप्लॉइटेशन एंड द अदर थीम इज द प्लाइट. प्लाइट मीन्स द बैड कंडीशन, द सैड कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या होती है? Marginalized communities means the communities who live at the margins of the society. यानी कि वो लोग इतने या तो पुअर हैं, इकोनॉमिकली हेल्पलेस है, या फिर सोशली, तो उनको उनकी कोई वॉइस ही नहीं सुनता सोसाइटी में. दे आर मार्जिनलाइज्ड. उनको मार्जिन पे रख दिया जाता है, उनको कॉर्नर में रख दिया जाता है सोसाइटी के, राइट? सो दीज टू थीम्स वी नीड टू हाईलाइट. इफ यू थिंक अबाउट दीज टू चैप्टर्स, you will realize कि Indigo talks about one particular community, and what is that community? Indigo farmers, right? Indigo farmers or indigo sharecroppers, whatever you call them. So ये है. And if you talk about roadside stand, so of course again we are talking about farmers or the roadside stand owners, right? Now the thing is कि we need to highlight कि ये दोनों chapters कॉमन तरीके से कैसे इन दो थीम्स को डील कर रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू ऑर्गेनाइज, यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन मैंने क्या बोला था कि इट इज गोइंग टू बी ओनली अ 2-liner इंट्रोडक्शन. एंड इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो ऑन द पील स्ट्रक्चर, कि वो पील स्ट्रक्चर क्या है, what is that peel structure? P stands for point. You need to point to the question directly, right? Or the central theme. तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं. क्या ये मैंने कुछ अलग से सोचा है? नहीं, ये मैंने कहां से लिया? ये मैंने क्वेश्चन से ही लिया है. So your introduction becomes a point to the question only. You can say reference to the question only. Both Indigo by Louis Fisher and The Roadside Stand by Robert Frost expose how the poor and the marginalized communities are exploited, highlighting the economic injustice and social neglect. अब ये तो मैंने additional डाला है, but if you do not want to write this or if you do not have any idea कि मैं कैसे ऐड करूं, इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है. Just write this much कि yes, they highlight the plight of marginalized communities and they showcase the neglect. बस that is it. Nothing else is required, right? So this becomes your introduction and a very good introduction. अब introduction के बाद आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है and then you need to change the paragraph. And we are going to move to the explanation. अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो चैप्टर्स हैं. दो चैप्टर्स का मतलब कि एक पैराग्राफ में मैं पहला चैप्टर डील करूंगी एंड सेकंड पैराग्राफ में सेकंड चैप्टर डील करूंगी, राइट? तो मेरा कंटेंट कितने पैराग्राफ्स का हो गया? मेरा कंटेंट हो गया 2 more paragraphs. So this was paragraph 1, introduction, right? Let us move forward. Now this brings us to the content. अब ये content पे हम आ गए para 2. Now if you read the pointers, तो मैंने क्या किया है? सिर्फ 2 pointers लिए, ज्यादा pointers लिए ही नहीं है, क्योंकि हमें 2 chapters को equally treat करना है, right? In Indigo, Champaran peasants are forced by British landlords to grow indigo under the Teen Kathia system, which ruins their livelihood and keeps them trapped in poverty. Now understand कि ये तो हमें सबको ही पता है, isn't it? कि वो exploitation पूरी दिखाई है. कैसे? क्योंकि the British landlords were taking a lot of, they were basically forcing them
to grow indigo and then they took the compensation fee that was not theirs, right? वो उन्होंने unjust तरीके से ली थी, तो ये था। तो ये मैंने फैक्ट एक शेयर कर दिया है। कितना फैक्ट है ये? फैक्ट नंबर 1। चैप्टर से ही है ना, राइट? अभी चैप्टर से ही मैंने बार बार रेफरेंस लिया। दे आर ऑल्सो मेड टू पे इलीगल कॉम्पनसेशन, आ गया वो इलीगल कॉम्पनसेशन, showing direct economic exploitation by colonial authorities। तो अब ये क्या है, मैंने क्या किया, ये फैक्ट लिया एंड देन उसका एक एविडेंस दे दिया, राइट? ये फैक्ट लिया एंड उसका एविडेंस दे दिया। कुछ ऐसा न्यू नहीं किया है मैंने जो कि आउट ऑफ द चैप्टर है, कुछ ऐसा नहीं लिख दिया है कि इसमें बहुत ही ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज कर लिए, नथिंग। I have just stated the fact and given evidence in support of my answer, right? तो ये हमारा बन गया पैराग्राफ नंबर 2, राइट? दिस इज पैराग्राफ नंबर 2। अब ये पॉइंटर्स के फॉर्म में है, बट आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना नहीं है, आपको एग्जैक्टली एक पैराग्राफ में लिखना है, राइट? Then let us move to para 3. Para 3 we need to deal with the next chapter, and what is the next chapter? Roadside stand. In roadside stand, the poor people set up a stand hoping to earn a little money, but they are ignored by city motorists who care only about their own comfort. तो यानी कि अगेन वो plight of marginalized communities दिखा रहा है कि they are hopeful of selling their commodities, लेकिन they are able to sell क्योंकि city people are completely absorbed by their own self, उनको खुद के डेस्टिनेशन पे ही जाने की पड़ी है। फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये तो हमारा कॉमन सिटी पीपल का क्रिटिक हो गया। देन फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लॉइट द विलेजर्स होप्स एंड ड्रीम्स व्हाइल रियल बेनिफिट्स नेवर रीच देम। ये क्या हो गया? आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू क्या? ये टेक्स्ट, आई एम रेफरिंग टू द टेक्स्ट अगेन। कैसे? क्योंकि इसमें वो बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे है ना, एक लाइन कि द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू गिव देम बेनिफिट्स, लेकिन उनके लिए एक्चुअल में रियलिटी में कुछ नहीं कर रही है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट रोड साइड स्टैंड एंड हाउ इट शोकेसेस द एक्सप्लॉयटेशन। कैसे? क्योंकि सिटी पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड द अथॉरिटीज आर ऑल्सो नॉट पेइंग अटेंशन। ओके, देन वी हैव the last one, that is last paragraph. Again, last paragraph has to be linking to the message, the main theme. It should be a linkage from the question to, from your answer to the question, or from your answer to the main theme of the chapter. And what is that? Both the works reveal that exploitation is not economic but also psychological and social. The texts highlight an urgent need to uplift the marginalized section of our society. अब ये जो कंक्लूजन है, दिस कंक्लूजन इट शुड एक्चुअली कम फ्रॉम यू, क्योंकि आपने आंसर लिखा है, राइट? तो उसका एक आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। वो कंक्लूजन चाहे जैसा भी, अब ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा इन्फ्रेंस है और ये मेरा यू कैन से कंक्लूजन है, राइट? बट इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं दैट बोथ द टेक्स्ट शोकेस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज डन बाय अथॉरिटीज दैट वर फॉरेनर इन नेचर, कॉलोनियल, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो क्या है, अब इंडियन अथॉरिटीज ही है। सो दिस यू कैन पुट एज कंक्लूजन कि दोनों तरफ से ये एक्सप्लॉयटेशन है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी, राइट? देन द अदर कंक्लूजन दैट यू कैन थिंक ऑफ इज यही वाला कि डिमेंशंस की वन टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज इन द रोड साइड स्टैंड, राइट? कि एक्सप्लॉयटेशन के डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बात कर रही है, राइट? और दूसरा क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल, जैसा कि इंडिगो में दिखाया कि द इंडिगो फार्मर्स दे वर अफ्रेड, द इंडिगो फार्मर्स दे वर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो कैसे गांधी जी हेल्प देम ओवरकम देयर फियर। अब ये भी एक मैंने चीज डिस्कस करी थी व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द सीबीएसई थीम्स, 5 मेजर themes that CBSE loves to ask questions on. So if you have not seen that video, वो आपको पक्का देखनी चाहिए, right? तो वो एक आपका ये भी एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो this can be your conclusion, right?
So this brings us to Dhurandhar tip of the day, and what is that? Boards don't test memory alone. कि अब rote learning नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपने वो रट्टाफिकेशन किया and जाके लिख दिया. No, they test presentation clarity and thinking. They test presentation clarity and thinking. So if you do not present your answer properly, then you are not going to get good marks. आपको yes average marks मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 2.5 मिल जाएंगे, but for securing that 4, 4.5 and 5, आपको अपना presentation answer का बहुत अच्छा रखना है. क्लैरिटी होनी चाहिए पॉइंट्स में. बार बार मैं बोल रही हूँ कि यू नीड टू पिक अप इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. बार बार उसको टेक्स्ट से रेफर करो. एंड थिंकिंग, अगेन योर ऑर्गेनाइजेशन, introduction, content and conclusion. And now you know how to show all this. If you liked the video, give it a thumbs up, share it with your friends so that they can also benefit out of it, and subscribe to my channel Fit the Lit for more such interesting updates.